Good morning, students. This is Mr. Pizatitis. Students, today we are going to discuss about chapter number 2 from your book called Fast Flight. Okay. From this book, we will discuss about chapter number 2. Okay. So, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and to your classmates. This is chapter number 2. The lesson name is A Long Walk to Freedom. This is written by Nelson Mandela and it is one of the autobiography also. What is the difference between biography and autobiography? Often I told in my videos. Biography means the life story can be written by somebody, but the life story or autobiography means the life story can be written by the person himself. ओके तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क ये है कि व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा लिखता है वो बायोग्राफी होता है और व्यक्ति के बारे में वो स्वयं अपने बारे में लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होता है। तो जैसे 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, like the same way after long struggle South Africa also got freedom from British and Nelson Mandela was the first black president of South Africa and he says something, okay, so that we will discuss today. ये नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोली हल्ला मंडेला. ओके, दिस इज हिज फुल नेम. इफ दैट इज इन a question, so you can have to know that. So in this chapter what we will discuss about the author, theme of the story and the summary. Self-assessment, just I will play there, but you have to do that yourself. Okay. So first of all about the author. Okay. As I told you, who is the author? Nelson Mandela. Nelson Mandela was a great hero who gave freedom to blacks in South Africa. नेल्सन मंडेला वो ऐसा है कि महान हीरो है जिन्होंने ब्लैक्स को, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स लोग थे उनको फ्रीडम दिलवाया था. ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन अ विलेज ऑफ साउथ अफ्रीका कैप प्रोविंस. साउथ अफ्रीका का एक कैप प्रोविंस में उसका जन्म होता है जो 18 जुलाई 1918 को. He fought against the apartheid regime of South Africa which believed in racialism. ये apartheid regime साउथ अफ्रीका के है और उसके अगेंस्ट में और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जिसको racialism भी कहा जाता है. He spent more than 30 years in prisons और लगभग 30 साल से भी अधिक समय वो जेल में रहे. He became the first black president of South Africa when his party came to power in democratic election in 1994. तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा 1994 को वो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. तो सवाल ये उठता है, सारे लोग तो यहाँ के ब्लैक है, फिर ब्लैक प्रेसिडेंट कहने का क्या मतलब है? दोस्तों, बात ऐसा है कि बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर भी जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था. ये लोग अपने रंग के कारण तुच्छ जाने जाते थे. फैसिलिटीज़ जो है
सबसे ज़्यादा गोरे रंग के लोग जो यहाँ पर रह रहे थे कुछ कॉलोनी बना करके, उनको सारे फैसिलिटीज़ मिलती थी, लेकिन इनके अपना देश होने के बावजूद भी इनको बहुत ही कम फैसिलिटीज़ मिलती थी। द क्वेश्चन इज दैट वाई it is called first black president, even all the country are staying, all the countrymen or women are the blacks. The answer is like this: as India was left under British for many years, as the same way South Africa was also underslaved by British for many years. Okay then, so theme of the story. It is a saga of a glorious struggle that the black of South Africa waged against apartheid regime to gain freedom. तो ये एक ग्लोरियस स्ट्रगल है, एक महिमा मंडन और महिमा मंडित करने वाली एक संघर्ष है जो ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीकन लोगों का, जिन्होंने अपार्थाइड रिजिम के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद फ्रीडम को प्राप्त किया। दिस टेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर जिस टेक्स्ट को बारे में हम विचार कर रहे हैं या जिस टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। जो पहले मैं बताया था कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फ़र्क है। जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी में जो ऑटोबायोग्राफी था उसमें से कुछ खंड लेकर के आपके लेसन में उसको मिलाया गया है। At the same time, the lesson pays tribute to those black heroes and patriots who sacrificed their lives to bring democracy in the country। और उनको सम्मान प्रकट की जाती है उन ब्लैक लोगों को, ब्लैक हीरोज़ को, नायकों को, जिन्होंने अपने जीवन को इसी डेमोक्रेसी को लाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिए, बलिदान चढ़ा दिए, बलिदान कर दिए। Here we find information about the inauguration ceremony held in Union Building, which was attended by the politicians and dignitaries from more than 100 countries। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्राप्त करते हैं कि इनाग्रेशन डे में क्या हुआ था, जो कई सारे राजनेता लगभग 140 कंट्री से यहाँ पे आए हुए थे, और उस इनाग्रेशन दिन में क्या क्या हुआ था इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। नेल्सन मंडेला गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इंसान के बीच में एकता, शांति, उसके बारे में नेल्सन मंडेला यहाँ पे एक भाषण देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं समरी के बारे में। फर्स्ट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट क्या होता है? इट वाज 10 मई 1994। The inauguration ceremony of the first non-racial government was held at the lovely amphitheater in the Union Building in Pretoria। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट क्या चीज़ होता है कि ये 10 मई की बात है। ओके, ये 10 मई की बात है, और जिस 10 मई में और 1994 की बात है, जो इनाग्रेशन सेरेमनी पहला नॉन रेशियल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजन किया गया, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। It was the largest gathering of the international leaders on the South African soil। ये एक बहुत बड़ा समूह हो गया था, गैदरिंग हो गया था, और जिसके चलते अफ्रीकन सॉइल में, अफ्रीका के मिट्टी में बहुत से इंटरनेशनल लीडर आए हुए थे।
Nelson Mandela was shown in the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला जो है पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। मंडेला स्पीच, मंडेला अपने स्पीच में क्या कहते हैं? मंडेला स्पोक अबाउट द सुपरमेसी ऑफ वाइट पीपल ओवर द कंट्री। मंडेला गोरे रंग के लोगों को सुपरमेसी किस प्रकार उनके देश में था उसके बारे में बताते हैं। ही ऑल्सो टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूबॉर्न लिबर्टी, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज़ादी का जो ये नई जन्म है उसके जो इम्पोर्टेंस क्या है। देयर विक्ट्री ओवर पार्थेल्ड वाज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और इसी के चलते वो जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। एंड इट वाज द टाइम टू वर्क हार्ड टू लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम प्रॉपर्टी डिप्राइवेशन एंड डिजीज। खाली आज़ादी मिल गया उससे पर्याप्त नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद जितने भी लोग आज़ाद हो चुके हैं उन सभी के लिए उनको गरीबी से, डिप्रेवेशन से, बीमारी से, इन सभी से दूर करना ही सबसे परम प्रधान लक्ष्य होगा। उनके कहने के तात्पर्य ये है, जैसे हमारा देश में भी जब 1947 को नेहरू जी ने भाषण दिया था तभी उन्होंने भी इस तरह की कई बातें रखी थी। इम्प्रेसिव डिस्प्लेस ऑफ जेट्स, जो हमने लेसन में जब पढ़ा था तभी हमने देखा है कि ये जो जेट्स किस प्रकार से अपने डिस्प्ले को प्रकट करती है। देन देयर वाज ए स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ जेट, फिर वहाँ पे एक स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले जेट्स के द्वारा किया जाता है। द जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर देयर हेड इन द स्काई, फिर बड़े गर्जन के साथ हेलीकॉप्टर और जेट्स ये क्या होने लग जाते हैं, उनके सिर के ऊपर उड़ने लग जाते हैं। इट वाज ऑल्सो ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड टू द न्यू गवर्नमेंट, और अपने न्यू गवर्नमेंट को और ये जो नए डेमोक्रेसी है उसको सम्मानित करने के लिए भी एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे होता है। देन 2 नेशनल एंथम वर प्लेड, 2 नेशनल एंथम वहाँ पे प्ले किया जाता है, जो अगर आप चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेंस ऑफ हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इतिहास के बारे में भी यहाँ पर मंडेला बताते हैं। मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विथ द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के वो पन्नों को यहाँ पर वो पलटते हुए कुछ बताते हैं। बिकॉज आफ्टर द एंग्लो-बोयर वॉर पार्थेइड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका, तो ये जो शासन है ना, एंग्लो-बोयर के जो बात की जो वार हुआ था, ठीक है, मतलब एंग्लो-बोयर वार के बाद एक अफ्रीथिल्ड इंट्रोड्यूस हुआ है साउथ अफ्रीका में। द सोसाइटी बेस्ड ऑन racial discrimination was the harassed and most inhuman society in the world। ये जो सोसाइटी है किसके ऊपर बेस्ड है? सोसाइटी बेस्ड ऑन racial discrimination was the harassed and most inhuman society in the world। ये एक harassed है और साथ ही साथ एक इनह्यूमन सोसाइटी वर्ल्ड में है। नाउ द न्यू सिस्टम ऑफ इक्वालिटी रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड रेस हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड एंड क्रूएल सिस्टम। तो जितने भी पुराने क्रूएल सिस्टम था, निर्दय सिस्टम था, उन सिस्टम को दबाते हुए एक नए सिस्टम, कलर को
ये सभी को छोड़ करके एक इक्वालिटी यानी एक एकता की भावना को साथ में लेकर के आए। पॉलिसी ऑफ आफ्रेथेल्ट, ये आफ्रेथेल्ट का पॉलिसी क्या है? दिस सिस्टम क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग wounds in the people. The decades of atrocities and exploitation of black people resulted heroes like Tempo or Sislus and other undoubtedly those heroes were the men of extraordinary wisdom and कॉरेज। तो यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में चर्चा की जाती है जिनके नाम को मैंने आपके सामने पढ़ के बताया। ये लोग करेज के लिए, विजडम के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। स्ट्रगल ऑफ कॉम्रेड्स यानी साथियों के द्वारा जो स्ट्रगल किया गया है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ग्रेट वॉलंटरीज, स्वेच्छासेवी के द्वारा जो करेज को और प्रकट किया गया उसके बारे में भली भांति मंडेला यहाँ पे क्या करते, सीख ले लेते हैं। दे वर ऑलवेज रेडी टू रिस्क एंड सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर एन आइडिया, द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। वो हमेशा तैयार रहते थे। कौन हमेशा तैयार रहते थे? जो हीरो से वो हमेशा तैयार रहते थे अपने जीवन को सैक्रिफाइस करने के लिए। ठीक है, अपने जीवन को सैक्रिफाइस करने के लिए किसी भी तरह से फ्रीडम को प्राप्त करना और इक्वालिटी को प्राप्त करना। इवन द पनिशमेंट ऑफ प्रिजन ऑल्सो कुड नॉट मूव देम अवे फ्रॉम देयर गोल। यद्यपि उनको काफ़ी दंडित किया गया, उनको बंदीगृह में डाला गया, लेकिन फिर भी वो अपने गोल को प्राप्त करने में कभी पीछे नहीं रहे। दे नेवर अलाउड द फ्लेम ऑफ स्ट्रगल टू बी एक्सटिंग्विश्ड। वो कभी भी जो मशाल जल रहा है, ठीक है, जो आग का जो ज्वाला वो जल रहा है फ्रीडम के प्रति, और वो कभी भी वो जो स्ट्रगल को कभी भी उन्होंने पूछने नहीं दिया। ठीक है, एक जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे हम यही चीज़ को देखते हैं कि स्ट्रगलिंग का जो फ्लेम है उसको कभी भी बुझने नहीं दिया गया। ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक पॉइंट है। ये ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि दोनों जिम्मेदारी अपने घर के प्रति और अपने देश के प्रति। इट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ मंडेला दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, है ना, बाध्यता दोनों विषय के प्रति। यह आइडियोलॉजी मंडेला का है। फर्स्ट ही हैज़ ए ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली एंड सेकंड फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री। पहला उसका उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति बनता है, उसके बाद उसके देश के लोगों के प्रति बनता है। बिफोर द फ्रीडम इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉलो द बोथ। फ्रीडम से पहले, आज़ादी से पहले ये दोनों चीज़ को फॉलो करना, ये दोनों चीज़ को पालन करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। इफ एनी ब्लैक्स ट्राइड टू लिव लाइक ए फ्री ह्यूमन बीइंग ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर कोई भी व्यक्ति, ब्लैक व्यक्ति, अगर वो अपने आप को मतलब फ्री करके रखना चाहता था, यानी फ्री मैन की तरह यदि वो अपने आप को व्यवहार करता था तो उसको आइसोलेटेड किया जाता था और पनिशमेंट भी किया जाता था। ही हिमसेल्फ वॉज फोर्स्ड टू लिव एन आइसोलेटेड लाइफ अवे फ्रॉम हिज फैमिली। उनको ऐसा, इनके जीवन में, मंडेला के जीवन में भी ऐसे बहुत समय आए जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार से लंबे समय तक बाहर ही रहे, अलग ही रहे। जॉइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, Mandela realized that not only was he deprived of freedom, but his other countrymen were also deprived of freedom.
This discrimination gave a turn in his life. He joined the African National Congress. So ये जो डिप्रेशन रहा वही उनको मजबूर कर देता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए। ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिज पीपल, वो अपने लोगों के आज़ादी को चाहते हैं, चाहा भी था। दिस थिंग्स ट्रांसफॉर्म्ड ए लॉ अबाइडिंग लॉयर इनटू ए आउटलॉ वन। तो यहाँ पे सेल्फ कुल मिलाकर के एक ही शब्द कई चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन का जो स्थिति है, ये डिस्क्रिमिनेशन का स्थिति उनको मजबूर कर देता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करना और किसी भी तरह से, जैसे गांधी जी ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने सारे संघर्ष करे और उसी प्रकार संघर्ष भी इन्होंने किया है। अब हम देखें सेल्फ असेसमेंट। ओके, ये इन क्वेश्चनों को आंसर्स जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर्स को आप अपने बुक से ढूंढ करके निकाल लें। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।